Hello, boys and girls. I hope you all are fine. Again, I welcome you to the third video of chemical kinetics. That is your most important remaining portions that we'll discuss today. पहले तो ये हो गया कि हमने पार्ट वन में 1-2 मार्क का डिस्कशन किया था. पार्ट टू में जो सबसे बढ़िया पोर्शन था, लाइक ऑर्डर एंड मॉलिकुलरिटीज का क्वेश्चंस एंड ऑल, काइनेटिक्स वीडियो में आपने देखा होगा. अगर नहीं देखा हो तो प्लीज गो एंड चेक इट. ये जो पोर्शन है, दिस केमिकल काइनेटिक्स पोर्शन इज बेसिकली आई एम डिस्कसिंग अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर, एक्टिवेशन एनर्जी एंड द कॉलिजन फ्रीक्वेंसी एंड ऑल. एंड इसमें से आप वी कैन एक्सपेक्ट वन ऑफ द 2 or 3 marks if it is possible. One definitely 2 marks to asking in the board exam. So let's start. ठीक है ना, 2-3 एग्जाम तो आ ही जाएगा बिकॉज मैंने आपको पार्ट वन में पढ़ा ही दिया था, इसको देख लेना आप. तो टेम्परेचर डिफरेंस, लेट्स गो फॉर द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन. सिंपल बेटा, कोई भी रिएक्शन है ना टेम्परेचर के ऊपर तो डेफिनेटली क्या होता है, डिपेंड करता है. रेट ऑफ रिएक्शन इमीडिएटली इंक्रीज और डिक्रीज, ऑल दैट हैपेंस ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू टेम्परेचर. टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा. एंड व्हाई दिस हैपेंस दो, व्हाई रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस with temperature? Because temperature is directly proportional to what, number of collision. If you increase temperature, the number of collision will increase. If number of collision increase, then definitely uh, the product will increase. हाँ, here the concept come into action, that is collision. So पहले तो ये हुआ कि how it is affected. If you see, if you increase the temperature by 10 डिग्री सेंटीग्रेड, कोई भी रिएक्शन का अगर हम 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा दें तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन हाउ इट विल बी अफेक्ट. सो उसका जो केमिकल रिएक्शन का जो रेट है दैट विल इंक्रीज बाय 2-fold. ओके, 2-fold माने ट्वाइस, 2 गुना हो जाएगा. सपोज ये रेट ऑफ रिएक्शन जो भी था, अगर 10 डिग्री टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन विल बी 2 टाइम्स, ये इसका 2 टाइम्स हो जाएगा. तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं. तो we can write k rate constant whenever temperature plus 10 by rate constant at temperature T will almost equal to 2 or 2 ही we can consider as 2. तो यहीं से इस टर्म का पैदा हुआ, that is called temperature coefficient. That means the temperature increase 10 डिग्री सेंटीग्रेड rate constant divided by the rate constant at normal temperature, उसको अगर डिवाइड करोगे तो 2 आ जाएगा. तो ये टेम्परेचर कोएफिशिएंट का डेफिनेशन आ सकता है. यू कैन बी be careful about this, you can remember this. So here and again the temperature dependence of rate of reaction तो हो ही गया, बट आप बताओ मुझे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एक्यूरेटली कैसे आप मेजर करोगे. 2 टाइम्स तो हम 10 डिग्री बढ़ाने से ये 2 टाइम्स हुआ. अगर कोई बोलेगा सर 8 डिग्री बढ़ाएंगे तो कितना होगा, अगर 15 डिग्री बढ़ाएंगे तो कितना होगा, तो उसका कोई एग्जैक्ट वैल्यू भी तो चाहिए. So there the terms comes into action, that is called Arrhenius equation. Okay, Arrhenius equation. Arrhenius is he is a scientist who given the relationship between rate constant and temperature. So what are the equation exactly? Rate constant equal to A into e to the power minus EA by RT. What is that EA? EA is nothing else, it is called activation energy. What is that? Activation energy. And this T is definitely absolute temperature, R is the universal gas constant, E is the exponential function, and A is called pre-exponential factor or Arrhenius factor or frequency factor. There are multiple names, but no worry. A means number of collision happens. That's exactly called frequency factor. Or as it is before the exponential value, it is also called pre-exponential factor. So this is all about the equation. Now let's go to the okay measured in the and how R is basically R का भी तो multiple units होता है. So here R will be gas constant. यहाँ पे कौन सा यूनिट जनरली यूज होगा, because we are using energy terms. तो 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ये वाला हम यूनिट यूज करेंगे किसका, आर वैल्यू का. ठीक है, देयर इज अनदर वैल्यू आल्सो बट दैट इज प्रेशर टर्म, तो यहाँ पे यूज नहीं करेंगे. आर का वैल्यू यहाँ पे 8.314 यूज होगा. ठीक है, सो नाउ लेट्स कम टू द एग्जैक्ट इक्वेशन. देखो, टेम्परेचर बढ़ने के साथ जो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है उसका एक ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन भी है, दैट्स गिवन बाय बोल्ट्जमैन एंड मैक्सवेल. बट ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, मैं आपको खाली ओवरऑल बता दूंगा कि व्हाट हैपेंस, व्हाट आर द थ्योरी टेल्स अस. देन कमिंग टू द रिलेशन जो बोर्ड में आता है जनरली वो देखेंगे. बट ये सब जो थ्योरी लिखा हुआ है, ऑल दैट आई कैन एक्सप्लेन इन दिस वीडियो एंड इन दिस ग्राफ ऑल्सो यू कैन सी. लुक, फर्स्ट ऑफ थिंग, ये जो है तुम्हारा दिस इक्वेशन दैट इज हियर इज एट टेम्परेचर T.
T टेम्परेचर में क्या हुआ, दिस आर द रिएक्शन हैपनिंग, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर कोलाइडिंग ईच अदर, ठीक है। तो कोलिजन की वजह से उनके बीच में क्या हो रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। बट एक चीज मुझे बताओ, ये T डिग्री माने मान लो ये हमने लिया 35 डिग्री सेंटीग्रेड, 35 डिग्री सेंटीग्रेड में इतना ही प्रोडक्ट बन रहे हैं, ठीक है। नाउ व्हाट आई वांट टू से, अगर इसको हमने 10 डिग्री बढ़ा दिया, सपोज 35 से हमने ले लिया 45 डिग्री तक, तो 45 डिग्री पे हाउ द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज ट्वाइस, बढ़ा क्यों, रेट ऑफ रिएक्शन जो है उसका स्पीड बढ़ गया, 10 दो गुना क्यों हो गया, उसका रेट कांस्टेंट का जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट दो गुना क्यों हुआ। इसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हो, द रीजन इज वेरी सिंपल, व्हाट, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स दोज हु कोलाइड टुगेदर, ये जो पार्टिकल नंबर ऑफ कोलिजन हो रहा था ना, यहाँ पे इफेक्टिव कोलिजन ज्यादा होने लगा। देन व्हाट इज इफेक्टिव कोलिजन, देखो मैं बताता हूँ। सपोज एक ये मान लो दिस इज वन ऑफ द पॉट और वन ऑफ द बीकर, यहाँ पे हम लेते हैं नंबर ऑफ कलर्स, लाइक यहाँ पे देखो एक ब्लैक कलर का पार्टिकल है, आई हैव लॉट ऑफ ब्लैक कलर पार्टिकल्स, ठीक है। देन कमिंग टू रेड कलर पार्टिकल्स, ठीक है। तो उनमें क्या हुआ, उनके बीच में जो कोलिजन हो रहा है ड्यूरिंग द कोलिजन, सपोज द ओनली उनके बीच में जो कोलिजन हो रहा है दैट सिंपल आ रहा है, वो उसके बीच में टक्कर हो गया, सिंपल चला गया, कोई मॉलिक्यूल यहाँ पे घूम रहा था उसके साइड में आके टक्कर होके चला गया। तो मैंने, इफ द कोलिजन इज नॉट दैट मच एनर्जेटिक, अगर उनके बीच में इतना एनर्जी नहीं है कि पूरा आएंगे धड़ से कोलिजन होगा और वो कोलिजन आके प्रोडक्ट देगा, अगर इतना नहीं हो रहा है देन दे आर नॉट गोइंग टू गिव यू प्रोडक्ट, बिकॉज कोलिजन के टाइम पे एनर्जी एक्सचेंज होता है, और एक्सचेंज ऑफ एनर्जी के टाइम पे ही उनका जो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट एंड द बॉन्ड फॉर्मेशन ऑल दैट हैपेंस ड्यूरिंग द एनर्जी एक्सचेंज। तो ये कोलिजन को हमें एक बड़ा सा कोलिजन में कन्वर्ट करना है जिसमें से ये इनका इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो जाए, एक प्रोडक्ट बन जाए। बट अगर सिंपल छोटा मोटा कोलिजन में हो ही रहा है तो वो प्रोडक्ट नहीं देगा। तो वहीं से टर्म आया इफेक्टिव कोलिजन का। व्हाट इज दैट इफेक्टिव कोलिजन एग्जैक्टली, द इफेक्टिव कोलिजन मींस द कोलिजन दैट गिव राइज टू प्रोडक्ट इज कॉल्ड इफेक्टिव कोलिजन। एंड वहां से तुम बोलोगे कि हमने जब 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा दिया तो क्या हुआ, सपोज मान लो यहाँ पे जो नॉर्मल 35 डिग्री सेंटीग्रेड में सपोज आउट ऑफ 100 पार्टिकल्स, मान लो ओनली 20 नंबर ऑफ पार्टिकल्स वेयर गिविंग इफेक्टिव कोलिजन, ओके, वेयर गिविंग इफेक्टिव कोलिजन। बट हमने जब टेम्परेचर बढ़ाया 100 से, अभी 20 से बढ़कर मान लो ये 40 पार्टिकल 40 पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, इफेक्टिव कोलिजन दे रहे हैं। तो 100 से ये मान लो ये जो एरिया है, दिस एरिया एग्जैक्टली टेल्स अस द प्रोडक्ट। तो ये एरिया में जो है दिस ऑल आर 80 प्रोडक्ट्स, 80 नंबर ऑफ पार्टिकल्स, दे आर डूइंग सिंपल कोलिजन्स, और ये कोई प्रोडक्ट आपको दे नहीं रहे। बट यहाँ से जो एरिया है द लास्ट टेल एंड एरिया, दिस एरिया गिव्स यू ओनली 20 नंबर ऑफ पार्टिकल्स, दीज आर गिविंग प्रोडक्ट्स, क्योंकि उनके पास प्रॉपर इफेक्टिव कोलिजन हो रहा है। तो हमने जब 10 डिग्री बढ़ाया तो यहां से जो 80 पार्टिकल थे, 80 पार्टिकल्स थे, वहां से अनदर 20% पार्टिकल या 20 नंबर पार्टिकल शिफ्टेड टुवर्ड्स इफेक्टिव कोलिजन। तो ये जो ग्राफ का एरिया है ना, वो क्या हुआ, धीरे धीरे कम हो गया। ये 80 से अभी 20 पार्टिकल आए, हाँ 20 पार्टिकल चले आए, और वो कहां तक चले गए, इस एरिया में चले गए। ये जो एक एरिया का कोलिजन का नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ गया। तो यही होता है ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन, यहाँ पे वही दिया हुआ है टोटल। आप अगर डार्क एरिया देखोगे यहाँ से तो आप देखोगे एक चीज, पहले टी जो था, व्हेनेवर टेम्परेचर टी वाज देयर, वहां पे डार्कन सर, ये जो डार्कन एरिया, यहाँ पे ओनली 20% पार्टिकल्स वर गिविंग प्रोडक्ट्स। बट 10 डिग्री बढ़ाने के बाद इसी एरिया से, ये जो एरिया में पार्टिकल्स थे, ये जो एरिया में यहाँ पे जो 20% पार्टिकल यहाँ पे थे, वो सब कहाँ शिफ्ट हो गए, यहाँ पे शिफ्ट हो गए। वो सब इफेक्टिव कोलिजन करने लगे। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा, कोलिजन ज्यादा हुआ, फास्टर हुआ, तो उनके बीच में प्रोडक्ट बनने का कैपेबिलिटी बढ़ गया। तो दैट्स व्हाई द एरिया इंक्रीज्ड, यहाँ पे एरिया बढ़ गया, इसीलिए प्रोडक्ट भी बढ़ गया। तो दैट्स व्हाई दिस ग्राफ एक्सप्लेन्स अबाउट मोल, दैट्स बोल्ट्जमैन, मैक्सवेल, ऑल दिस ग्राफ एक्सप्लेन। हमें इतना थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमने जो बताया वो एक्सप्लेनेशन ही सब कुछ है। क्लियर, चलो अभी देखते हैं और एक आगे बढ़ते हैं। ये हो गया तुम्हारा इफेक्टिव कोलिजन ऑन दिस एरिया गिव्स यू द प्रोडक्ट। एंड वहीं से एक टर्म आया कोलिजन फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज कोलिजन frequency? Frequency is means the repeated units per second. The number of repetition per second is simply frequency. तो वही जगह पे अगर number of collisions per unit volume per unit second
इज कॉल्ड कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है 1 मार्क का क्वेश्चन। व्हाट डू यू मीन बाय कॉलिजन फ्रीक्वेंसी एंड इट्स बीन डिनोटेड बाय जेड। ये आगे जाके और भी काम में आएगा, देख लेना। एन इफेक्टिव कॉलिजन इन ओनली दैट आउट ऑफ ऑल कॉलिजन्स दोज यू गिव प्रोडक्ट दे आर इफेक्टिव कॉलिजन। तो वहीं से टर्म आया कि देखो हमने तो दो चीज डिसाइड किया कि एक मॉलिक्यूल और एक एटम, एक दूसरा एटम, ये दोनों के बीच में जब कोलिजन हो रहा है, हर एक मॉलिक्यूल क्यों इफेक्टिवली कोलाइड नहीं कर पाते। पहले सोचो कि ये जो कोलिजन और एक मॉलिक्यूल यहाँ पे 3 है, सपोज ये एटम नंबर ए, दिस इज एटम नंबर बी, दिस इज एटम नंबर सी, ए एंड बी के बीच में सपोज फेस टू फेस कोलिजन हुआ, तो वहां पे ज्यादा 100% चांस होता है कि ये 100 ही नहीं, मैंने मेजर चांसेस होता है कि ये प्रोडक्ट देगा। हाँ, अगर उसके पास स्पीड सही है, उसके पास वेलोसिटी सही है, एनर्जी ऑफ जो मोमेंटम सही है एंड ओरिएंटेशन भी सही है, पूरा फ्रंट टू फ्रंट हो गया, तभी जाके प्रोडक्ट देगा। मान लो एट द सेम टाइम सेम ए इज नॉट, क्या हो रहा है यहाँ पे बी के साथ कोलिजन ना हो, कि अगर ये सी तक आ रहा है, सी के साथ ये आया, ऊपर से जस्ट कोलाइड करके चला, जस्ट टच करके चला गया, ये कोलिजन इफेक्टिव इतना हुआ नहीं। भले ही स्पीड उसके पास जितना चाहिए था, बट क्या नहीं हुआ ना, ओरिएंटेशन मैच नहीं हुआ, फेस टू फेस नहीं हुआ, पूरा ये साइड में चला गया, तो ये बाबा इफेक्टिव कोलिजन नहीं देगा। तो स्पीड इज नॉट ओनली द मैटर, ओरिएंटेशन इज अनदर मैटर। तो वहीं से कोलिजन फ्रीक्वेंसी से एक टर्म आया, स्पीड आता है और फ्रीक्वेंट मैंने तुम्हारा ओरिएंटेशन फैक्टर भी एक मैटर करता है। तो वहीं से हम फिर एक टर्म के बारे में डिस्कशन किए, द आरएनएस इक्वेशन, व्हाट एवर यू स्टडीड हियर, व्हाट एवर द इक्वेशन इज गिवन, लाइक k इज इक्वल टू ए इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी, अभी जो हमने पढ़ा, तो इसको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन की जरूरत था। ओके, सो आफ्टर इफेक्टिव कॉलिजन वी कैन लर्न वन थिंग, दैट इज व्हाट इज द एक्टिवेशन एनर्जी। यहाँ पे तो हमने एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में डेफिनेशन तो पढ़ लिया। हाँ, एक चीज तो हमने बोलना भूल गया, दैट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी। बेटा ये ग्राफिकली हम समझा देते हैं, व्हाट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड एक्टिवेशन एनर्जी एंड हाउ टू कैलकुलेट दैट, तुम्हारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए क्या ग्राफ होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए क्या ग्राफ होगा। पहले ये समझ लो, दिस इज ए ग्राफ फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बट लेट मी टेल हाउ यू कुड ड्रॉ द ग्राफ प्रॉपरली। देखो, एक रिएक्शन होने के लिए हमने बोला कि कोलिजन की जरूरत है। ओके, तो कोलिजन, क्या हर कोई कोलिजन तो प्रोडक्ट नहीं देता, तो क्या होगा, सपोज एक रिएक्टेंट, मान लो कोई भी रिएक्शन है, एक रिएक्टेंट के पास एनर्जी सफिशिएंट है नहीं प्रोडक्ट बनाने के लिए, ठीक है, वो ऐसा ही घूम रहा है, उसका जो कोलिजन नॉट इफेक्टिव, नॉर्मल कोलिजन डोंट गिव यू प्रोडक्ट्स। तो इसमें क्या हुआ कि इसके पास मान लो कि ये जो है दैट इज तुम्हारा एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, दिस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मान लो इट इज ओनली 20 जूल ऑफ एनर्जी उसके पास है, रिएक्टेंट के पास, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी। बट रिएक्शन प्रोडक्ट बनाने के लिए उसको चाहिए सपोज 80 किलो जूल का एनर्जी चाहिए, 80 जूल का एनर्जी चाहिए होगा। तो 20 है उसके पास, रिएक्टेंट के पास, प्रोडक्ट बनने के लिए 80 चाहिए होगा, तो बीच में डिफरेंस कितना आ गया, 60 जूल। दैट मीन 60 जूल मिनिमम, अगर इतना 60 जूल आप रिएक्शन के ऊपर, रिएक्टेंट को बाई एक्सटर्नली अप्लाई कर देते हो, रिएक्टेंट के ऊपर आप 60 किलो जूल एनर्जी देते हो, तो उनके बीच में जो कोलिजन होगा, दे विल गिव यू द एटलीस्ट 80 किलो जूल, जो 80 जूल का जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है, थ्रेशोल्ड माने द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, एटलीस्ट वहां से रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। सो दिस द लिमिट, उसके ऊपर तुम जितना एनर्जी देना है दे दो, रिएक्शन तो होगा ही, बट मिनिमम 80 तक पहुंचना चाहिए, और 80 तक पहुंचने के लिए रिएक्टेंट के पास 20 है, तो और एक्स्ट्रा 60 चाहिए होगा। दिस 60 किलो जूल इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी, दिस इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। दैट मीन्स द एनर्जी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड। हाँ, मिनिमम वर्ड क्यों लग रहा है, बिकॉज ऐसा नहीं है कि आप 60 की जगह आप 70 दोगे तो रिएक्शन नहीं होगा, हो सकता है, तो मिनिमम तो 60 चाहिए ही चाहिए, उसके आगे तुम जितना देना चाहते हो दे सकते हो। तो इट्स अ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिएक्शन टू रीच टू थ्रेशोल्ड लिमिट, थ्रेशोल्ड लिमिट तक पहुंचने के लिए जितना एनर्जी चाहिए होगा, दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी, एंड ई ए इज कॉल्ड ई टी माइनस ई आर, थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस रिएक्टेंट एनर्जी। अच्छा, अगर मान लो रिएक्शन हो गया, रिएक्शन हमने यहाँ तक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक पहुंच गए, पूरा अनस्टेबल मीडियम ही है, इमीडिएटली वो प्रोडक्ट देना शुरू कर दिया। बट मान लो कि जो प्रोडक्ट हो रहा है, सपोज यहाँ पे एग्जांपल दिया H2 एंड I2, H2 एंड I2 गिव्स यू 2HI, तो ये रिएक्टेंट का एनर्जी था 20 जूल, बट प्रोडक्ट होने के बाद HI का जो एनर्जी है, सपोज मान लो ये 10 जूल है, मान लो ये 10 जूल है, तो रिएक्टेंट के पास पहले से 20 था, प्रोडक्ट हो गया तो 10, तो ये
रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बीच में जो क्या हुआ, एनर्जी का डेफिशिएंसी हुआ, दैट इज बिन एक्सेल आउट, क्योंकि पहले तो 20 किलो जूल था उसके पास, अभी 10 किलो जूल बच रहा है, मतलब 10 किलो जूल जो एक्स्ट्रा था, दिस 10 किलो जूल इज रिमूव्ड आउट इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। तो यही से ये हो गया एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि 20 किलो जूल उसके पास, रिएक्टेंट के पास, 10 किलो जूल प्रोडक्ट के पास, तो जो डिफरेंस हुआ 10 किलो जूल, दैट रिलीज्ड एज द हीट एनर्जी, दैट रिलीज्ड एज द हीट एनर्जी। तो वहीं से टर्म हो गया तुम्हारा एक्सोथर्मिक केस का फैलाव। तो अगर इसी ग्राफ को हम एंडोथर्मिक बनाएं, अगर इस ऐसा ग्राफ को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए बनाएंगे तो ग्राफ जनरली कैसे होगा, लेट्स सी दैट। तो एग्जांपल अगेन मान लेते हैं वही रिएक्शन है, रिएक्टेंट के पास 20 किलो जूल एनर्जी है ही, ठीक है, बट मान लो प्रोडक्ट के जो प्रोडक्ट होगा उसके पास होगा 30 जूल या 35 मान लेते हैं, 35 जूल है। 35 जूल माने यहाँ से रिएक्टेंट स्टार्ट हुआ, हमने एनर्जी 60 एक्टिवेशन एनर्जी 60 जूल दे दिया, ये पूरा एक्टिवेशन एनर्जी के पास एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स पहुंच गया, थ्रेशोल्ड पहुंच गया, फिर जो प्रोडक्ट हुआ यहाँ से प्रोडक्ट, ये जो प्रोडक्ट हुआ यहाँ पे, दिस इज 35 जूल, तो एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज 35 जूल। तो माने ये क्या हुआ, 20 से 35 का जो सफर है, जो एनर्जी का डिफरेंस है, 15 जूल का डिफरेंस, दैट इज मोर, दैट मीन्स दिस अ रिक्वायरमेंट, प्रोडक्ट होने के लिए एटलीस्ट 15 जूल तो एक्स्ट्रा चाहिए होगा, तो ये 15 जूल बीइंग कैप्चर्ड फ्रॉम द सराउंडिंग, तो ये एंडोथर्मिक हो गया तुम्हारा, एंडोथर्मिक माने हमने हीट प्रोवाइड किया रिएक्शन होने के लिए, 15 जूल एक्स्ट्रा, रिएक्टेंट के पास 20 था, 15 तो हमने दे ही दिया, तो ये हुआ एंडोथर्मिक। तो एंडोथर्मिक में ग्राफ कैसा होगा, ई आर नीचे रहेगा, ईपी ऊपर रहेगा, ईपी इधर, ई आर नीचे, और ये तो तुम्हारा थ्रेशोल्ड एनर्जी ईटी। और ये के लिए एक्सोथर्मिक के लिए ई आर से ईपी नीचे रहेगा, बस इनके बीच में डिफरेंस, दिस इज डेल एक्स, यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा डेल एच, और यहाँ पे जो एंडोथर्मिक केस में ये डेल एच होगा पॉजिटिव। सो दिस इज द ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ द एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक थिंग्स। एंड एक्टिवेशन एनर्जी हमने बता दिया, दिस इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रीच द रिएक्टेंट टू थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल और टू फॉर्म ए एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। डेफिनेशन पूछता है, इफेक्टिव कोलिजन का डेफिनेशन, सॉरी एक्टिवेशन एनर्जी का डेफिनेशन, इफेक्टिव कोलिजन का डेफिनेशन, कोलिजन फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन, ये सब आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। So okay guys, so if you see now like RNA क्वेश्चन हम नेक्स्ट फॉर्म में देखेंगे, तो लाइक यहाँ पे k इज इक्वल टू ए टू द पावर माइनस ए बाई आर टी, तो इसको हम ले लेते हैं लॉन पे, क्योंकि हमें अगर मल्टीपल टेम्परेचर में देखना है, जैसे हमने बोला कि T+10 में जो भी रेट कांस्टेंट होगा डिवाइड बाई इक्वल टू 2 टाइम्स, हम ऐसा नहीं है कि 10 डिग्री बढ़ाएंगे, हम कुछ भी टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं, 15 20 20 एनीथिंग यू कैन डू इट, तो उसके हिसाब से रेट कांस्टेंट में क्या चेंज आएगा, तो फॉर दैट रिलेशन वी हैव टू गो लिटिल बिट। तो यहाँ पे ले लेते हैं लॉन, लॉन के इक्वल टू लॉन ए इंटू, ओके, लॉन ए इंटू लॉन ऑफ, ये तो प्लस हो जाएगा बट एनीवे, प्लस लॉन इन e to the power minus ea by rt. You you have to understand this logarithm n value ln and exponential both are inverse function to each other, okay, जैसे मैं हम बताते हैं डेरिवेटिव, डेरिवेटिव एंड दैट इंटीग्रेशन बोथ आर इनवर्स फंक्शन टू ईच अदर, तो लाइक दैट लॉन इज इनवर्सली फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल थिंग, तो ये क्या हो जाता है, तो ये दोनों यहाँ पे कट जाते हैं, तो कटिंग की वजह से क्या होगा, तो बचेगा खाली तुम्हारा ई ए बाई आर टी, तो ये हमने कर दिया लॉन के इक्वल टू लॉन ए माइनस ई ए बाई आर टी। तो फिर तुम्हारा नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे हम लॉग को कन्वर्ट करने के लिए क्या लेंगे, नेक्स्ट स्टेप में मैं बता देता हूँ, 2.303 लॉग के इक्वल टू 2.303 लॉग ए माइनस, ये तो कुछ नहीं है इसमें ई ए बाई आर टी, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे भी 2.303 है, यहाँ पे भी 2.303 है, तो हम क्या करेंगे, दोनों में डिवाइड कर देंगे 2.303, यहाँ पे भी 2.303 और यहाँ पे भी 2.303, तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल ये कैंसिल, तो खाली बचेगा ई ए बाई 2.303 आर टी, तो वही हुआ फाइनली लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए माइनस ई ए बाई 2.303 आर टी, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि फाइनली क्या हुआ, ओके सॉरी मैं इसको क्लीन कर देता हूँ, बट आप देख लो, ये फंक्शन रहने दीजिए, कोई इशू नहीं है। कमिंग टू नेक्स्ट इक्वेशन, तो यहाँ पे अगर हम, ये तो खाली लॉग के बारे में हमने पढ़ा,
तो अगर हम देखेंगे टेम्परेचर वेरिएशन में क्या होगा, हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट टास्क है कि यहाँ पे ग्राफ ग्राफ बहुत मायने रखता है भाई। यहाँ से तो क्वेश्चन आने वाला है, तो यहाँ से एक मैं काम करता हूँ, y इज इक्वल mx प्लस c के हिसाब से बताता हूँ ग्राफ क्या होगा। लुक, तो ln k इक्वल टू ln a माइनस ई ए बाय आर टी हमने बोला था। तो आर टी को हम क्या करते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं 1/t। ये हो गया तुम्हारा x वैल्यू, दैट इज वेरिएबल, ये कांस्टेंट, ए भी आरइनियस कांस्टेंट। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में हम ऐसा लिख सकते हैं ई ए बाई आर इंटू 1/t प्लस लॉन ए। तो लॉन ए हो गया तुम्हारा इंटरसेप्ट, ये हो गया तुम्हारा एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, दैट इज तुम्हारा लॉन के, एंड नेगेटिव स्लोप हो गया माइनस ई ए बाई आर। अगर ये लॉन में है तब तो तुम्हारा ये इंटरसेप्ट है, ये लॉन के तुम्हारा बता दिया वाई एक्सिस, 1/t हो गया एक्स एक्सिस, इंटरसेप्ट का लॉन है। ये सबसे ईजी है, एग्जैक्टली हमने वीडियो 1 में भी बताया था, वीडियो 2 में बताया था रिलेटेड टू फास्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। एंड अगर लॉन को हमने लॉग में कन्वर्ट कर दिया तब तो गेम बदल जाता है। क्या हो गया ना, ये हो गया तुम्हारा y एक्सिस दिस वन, ये हो गया तुम्हारा इंटरसेप्ट दैट इज c, ये हो गया तुम्हारा 1/t दैट इज योर x एक्सिस, एंड दिस वन माइनस ए बाई 2.303 r, 2.303 r, दैट इज इक्वल टू बिकम्स स्लोप। तो खाली आपको लॉन की जगह लॉग लिख लेने से क्या हो जाता है, 2.303 ऑटोमेटिकली डिवाइड हो जाता है। सो यू हैव टू रिमेंबर ऑल दिस बिकॉज ये क्वेश्चन आता रहता है, एमसीक्यू में हो जाए, शॉर्ट क्वेश्चन में हो जाए, कहीं ना कहीं आ जाता है। ठीक है, सो दिस ऑल अबाउट ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस। नाउ कमिंग टू चेंज इन टेम्परेचर। हाँ, यहाँ पे और एक बच गया, जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, 2 डिग्री टेम्परेचर लेंगे, सपोज एक T2 होगा और एक T1 होगा, तो उनके बीच में रिलेशनशिप क्या होना चाहिए, ये डेरिवेशन हम कर सकते हैं, बट डेरिवेशन की ऑलमोस्ट रिक्वायरमेंट है नहीं, फिर भी हम पढ़ा देते हैं क्या होगा। थोड़ा सा देख लो, इतना डेरिवेशन आता नहीं है, बट जस्ट फॉर ए सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम अभी यही डेरिवेशन कर लेते हैं। अगर तुम्हारे पास ये है ना, लॉन के वन का वैल्यू है, लॉन के टू का वैल्यू डेरिवेशन है, तो दोनों का टेम्परेचर अगर चेंज हुआ, सपोज टी टू इज द टेम्परेचर हायर टेम्परेचर एंड टी वन इज द लोअर टेम्परेचर, तो उन दोनों को सब्सट्रैक्ट करके क्या हो जाएगा, ये लॉने लॉने तो कैंसिल होगा सब्सट्रैक्ट होने के बाद, तो ये बाई आर टी वन माइनस ये बाई आर टी टू। तो आपको पता है लॉगरिथम फंक्शन के हिसाब से k2 माइनस k1 हो जाता है लॉन k2 बाई k1 लॉगरिथम के हिसाब से, और ये बाई आर हम कॉमन ले लेते हैं, तो 1/t1 माइनस 1/t2। तो वही वाला अगेन फंक्शन अगर यहाँ से देखोगे, लॉन k2 बाई k1 इज इक्वल टू ई ए बाई आर 1/t1 माइनस 1/t2। ठीक है, ठीक है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, 2.303 मल्टीप्लाई करके क्या कर सकते हैं, लॉग में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगेन वही लॉग k2 बाई k1 अगेन, तो यहाँ पे अगर तुम 2.303 मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा कहाँ पे, ये बाई 2.303 r 1/t1 माइनस 1/t2। तो ये यहाँ से हट जाएगा और ये यहाँ से आके डिवाइड हो जाएगा। तो वही काम किया हमने बस। ठीक है, और यहाँ से और एक चीज़ नोटिस कर सकते हो, दिस ई ए बाई 2.03 आर हो गया तुम्हारा कांस्टेंट, ये आर भी कांस्टेंट, खाली तुम्हारे इसमें इधर एक्टिवेशन एनर्जी पता है एंड टेम्परेचर पता है, तो यू कैन कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट। अगर रेट कांस्टेंट पता है एंड एक्टिवेशन एनर्जी पता है तो टेम्परेचर आप निकाल सकते हो। मोस्टली टेम्परेचर निकालने के लिए देता नहीं है, टेम्परेचर आप दिया होगा, कांस्टेंट दिया होगा, एक्टिवेशन एनर्जी पूछा होगा, नहीं तो टेम्परेचर दिया होगा, एक्टिवेशन एनर्जी दिया होगा, रेट कांस्टेंट पूछा होगा, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आता रहता है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स आने से पहले मैं सोच रहा हूँ हम थोड़ा और एक ये ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन बता देते हैं। जैसे हमने बताया लॉग k2 माइनस k1 इज इक्वल टू ए बाई 2.303, दिस को हम ये ले लेते हैं तुम्हारा, ये पहले वाला स्लाइड में नेगेटिव स्लोप था, ये ऑल दीज आर नेगेटिव स्लोप्स, इसलिए स्लोप ऐसा नीचे आ रहा था। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, स्लोप इज पॉजिटिव एंड यहाँ पे इंटरसेप्ट है ही नहीं, राइट। इंटरसेप्ट ना होने की वजह से क्या हो जाएगा, दिस इज y इक्वल टू, ये हो जाएगा कोई एम एक्स खाली है, कोई सी है ही नहीं, देर इज नो इंटरसेप्ट, तो x हो गया 1/t वेरिएबल, ये हो गया तुम्हारा स्लोप। तो ये भी तुम्हारा पॉजिटिव स्लोप होने की वजह से ऑरिजिन से स्टार्ट हुआ, क्योंकि इंटरसेप्ट नहीं है तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम ऑरिजिन। तो ये हो गया ग्राफ। So this is all about graphical explanation of Arrhenius equation whenever two different temperatures are involved. Let's go for one question. ये एनसीडी का क्वेश्चन आप देख सकते हो, कोई नहीं है, आराम से आप एनसीडी बुक फॉलो करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता रहता है, मैं इसमें देखता हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर मिलेगा आई विल गो फॉर, मिलेगा क्या मतलब है तो हमारे पास, विल गो फॉर समथिंग्स, डोंट वरी। लेट्स गो टू दिस क्वेश्चन, सिंपल वन। 500 डिग्री केल्विन है, 700 डिग्री में अगर रिएक्शन हुआ है 5 एंड 700 केल्विन, एक का है रेट कांस्टेंट 0.02 सेकेंड इनवर्स फास्ट ऑर्डर है, और दूसरा है
0.07 सेकेंड इनवर्स। तो कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी, सिंपल। रेट कांस्टेंट दिया हुआ है, K2 K1 का रेट कांस्टेंट दे दिया है और टेम्परेचर भी T1 T2 दे भी दिया है, तो पुट द फॉर्मूला, गेट द आंसर। मेरे हिसाब से क्या करोगे ना, अगर तुम्हें सपोज मान लो एग्जाम में थोड़ा टाइम कम मिल रहा है और कैलकुलेशन नहीं हो पाया, तो एटलीस्ट यू शुड नेवर लीव एनी ऑफ द न्यूमेरिकल नो राइटिंग एनीथिंग। न्यूमेरिकल को कब न्यूमेरिकल हो जाता है, कभी कभी बच्चों का लगता है न्यूमेरिकल बहुत डिफिकल्ट है, करना मुश्किल होगा, ये ब्ला ब्ला लॉट ऑफ थॉट्स आर देयर। माय डियर, देयर इज ऑलवेज ए यू नो प्रिविलेज इन दिस न्यूमेरिकल कि आपको अगर फॉर्मूला पता है, यू राइट द फॉर्मूला, हाफ मार्क, कभी कभी 1 मार्क भी मिलता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जैसा टॉपिक में 1 मार्क मिल जाता है, तो हाफ और 1 के लिए तो तुम स्ट्रगल नहीं कर रहे हो, खाली फॉर्मूला याद रख लिया। और उसके आगे और भी इजी है, अगर फॉर्मूला पता है तो वैल्यू भी पुट कर दो, तो उसके लिए और 1 मार्क मिल गया। हाँ, अगर टाइम नहीं हुआ तो ठीक है, कैलकुलेशन बाद में कर सकते हो, नहीं तो एटलीस्ट तुम 1.5 तो यहीं पे कर लिए, 3 मार्क का क्वेश्चन है, तो वाई आर यू थिंकिंग मच। तो आप कभी भी फॉर्मूला को छोड़ना मत, फॉर्मूला लिखिए, वैल्यू पुट कीजिए एंड उसके बाद स्टेप वाइज रिएक्शन कीजिए। कभी भी बिना फॉर्मूला के वैल्यू मत पुट कीजिए, क्योंकि फॉर्मूला के लिए सीबीएसई हाफ मार्क देता है, फॉर्मूला मस्ट बी रिटेन, ठीक है। और वैल्यू भी ना लिख के छोड़ना मत, ऐसा नहीं कि रफ कॉपी में वैल्यू वैल्यू पुट करके खाली फाइनल आंसर लिख दिए, उसके लिए मार्क कट जाता है। क्योंकि सीबीएसई क्या दिखता है, टीचर्स क्या दिखता है, वेदर यू डन इट करेक्ट वे और नॉट, आंसर तो किसी से भी उतार दोगे, जबकि है नहीं तुम्हारा प्रोविजन, बट डोंट डू दैट, ऑलवेज वट एवर द एफर्ट यू आर गिविंग, शो केस इट। ये हो गया एक इक्वेशन। लेट्स कम टू अनदर केस, दैट इज आई टोल्ड यू आई विल डिस्कस लेटर, दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी। जैसे हमने बनाया कि एक्टिवेशन एनर्जी, अभी इतना पढ़ लिए कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, क्या एक्चुअली एक्टिवेशन एनर्जी होता क्या है। देन कमिंग टू इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, दिस इज द लास्ट पोर्शन एज पर द माइंड मैप में दिया था मैंने, या किसमें, वीडियो 1 में। ये वाला पोर्शन से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 1 मार्क। क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि कैटलिस्ट एक ऐसा चीज है कि कॉन्सेप्चुअल बेस है, इसमें कोई न्यूमेरिकल वगैरह कुछ है ही नहीं, खाली कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सो व्हाट इज कैटलिस्ट, बेसिकली कैटलिस्ट इज एनीथिंग which change the rate of reaction, which change the rate of reaction. हाँ, it can increase the rate of reaction whenever it is named as catalyst, whenever it is decrease the rate of reaction it converted to inhibitor, whenever it is change the reduce the rate of reaction or speed of reaction it becomes inhibitor, ठीक है। और काम क्या है, कैटलिस्ट रिड्यूसेस द एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करता है, ये कम कर देता है, सो दैट रिएक्शन थोड़ा फास्टर हो जाता है एंड इट ट्राई टू फॉलो मल्टीपल स्टेप्स टू रिड्यूस द पोटेंशियल एनर्जी और द एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये मल्टीपल स्टेप भी फॉलो करके रिएक्शन को कम, ऐसा एक रिएक्शन पाथ फॉलो करता है जिसमें से एनर्जी कम लगेगा, तो ये काम है कैटलिस्ट का। कैटलिस्ट और क्या नहीं करता, कैटलिस्ट गिव्स फ्री एनर्जी को अल्टर नहीं करता, ये आता है एमसीक्यू में, व्हाट हैपेंस टू गिव्स फ्री एनर्जी व्हेन कैटलिस्ट इज अप्लाइड और समथिंग लाइक दिस, विल डू तो पीवाईक्यू, इसमें पता चल जाएगा कैसा क्वेश्चन आता है आपको, नहीं तो आप देख सकते हो सैम्पल पेपर जो तुम्हारे पास रेफरेंस है उसमें भी देख सकते हो प्रीवियस क्वेश्चन। तो ये फ्री एनर्जी को कुछ नहीं करता, it do not alter and it only catalyzes reactions those are spontaneous, माने जो खुद पे खुद होता है उनके लिए कैटलिस्ट काम करता है, ठीक है। जो नॉन स्पॉन्टेनियस है, रिएक्शन होता ही नहीं है, करता खुद अपने तरफ से होता नहीं है, तो उसके लिए कैटलिस्ट काम नहीं करता, ठीक है। तो नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए कैटलिस्ट कुछ नहीं करता, स्पॉन्टेनियस के लिए कैटलिस्ट रिएक्टिव है और it alter the path or reduces the activation energy. Similarly, catalyst do not change the equilibrium constant, rather it helps the attaining equilibrium constant faster. ये कैसा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, K is equilibrium constant और Kc इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन तो कैटलिस्ट से बदलाएगा नहीं ना, तो कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट रिएक्शन को फास्टर करा देता है। सपोज कोई भी रिएक्टेंट अगर 80% प्रोडक्ट दे रहा है, उसको 10 मिनट पहले लग रहा था, कैटलिस्ट ऐड करने से ये 1 मिनट में हो गया, बट हुआ तो वही 80% है ना, 100% कन्वर्ट हुआ 80% में। तो ये इसका काम है, खाली रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट करना, तो केसी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। तो केसी क्या हो जाएगा, तो प्रोडक्ट हो गया 80%, रिएक्टेंट था तुम्हारा हो गया रिएक्टेंट 20%, तो 80/20 हो जाएगा। तो इसमें केसी वैल्यू का कोई चेंजेस का, कैटलिस्ट डू नॉट चेंज द केसी वैल्यू, रेट कांस्टेंट दैट इज प्रोडक्ट बाय रेशियो कंसंट्रेशन डू नॉट चेंज। तो ये हो गया एक चीज। सिमिलरली ये ग्राफ तुम देख सकते हो, रिएक्टेंट खाली एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके थोड़ा सा जल्दी रिएक्शन को खत्म करता है। So these are the things. Totally, I completed the chemical kinetics chapter theoretically, but previous year question आप देखना चाहिए definitely, so that you can do lot of questions. The confidence will be built up.
इसी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, ये जो हमने पढ़ाया, जो नोट्स है मैं सबको आपको शेयर कर देता हूँ, लिंक में शेयर कर देता हूँ मैं वेबसाइट का, उसी में से आप डाउनलोड कर लो, ठीक है? और कुछ भी डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हो। इट इज़ द नाउ लेट्स गो टू सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस। हाँ, ये ईज़ी है, कोई नहीं। पार्ट 1, पार्ट 2 वीडियो में ये क्वेश्चन था, ठीक है? ये सब मैं शेयर करता हूँ आपके साथ। आई विल कमिंग विथ अनदर वीडियो जहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड लॉट ऑफ थिंग्स विल बी अवेलेबल, क्योंकि व्हाई आई एम फोकसिंग ओनली अपॉन पीआईक्यू, बिकॉज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको क्या मिलता है कि कॉन्फिडेंस मिलेगा, कैसे कि हम जो भी पढ़ रहे हैं वो क्वेश्चन आ ही रहा है माने बोर्ड में। वो थोड़ा क्या होगा ना, विश्वास होगा खुद के ऊपर, कि ट्रस्ट होगा कि हाँ, मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ ठीक है। अगर खाली प्रैक्टिस करने से कुछ नहीं होगा, खाली पीवाईक्यू इसीलिए मैं सजेस्ट करता हूँ ऑलवेज़। ऐसे तो ये जो क्वेश्चन है लाइक दिस रिएक्शन, वो तो कहीं न कहीं साल में आया होगा। मैं यहाँ पे ईयर नहीं मेंशन किया हूँ, शायद 22 में आया था। ठीक है? चलो कोई नहीं, विल गो टू अनदर वीडियो वेयर विल डिस्कस ऑल द क्वेश्चंस। प्लीज़ गिव मी सम टाइम एंड ये तुम सब देख लो, ठीक है? थैंक यू सो मच।